عاقب جاوید کو قومی وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عاقب دورہ زمبابوے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اب ملکی کوچ پر انحصار کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان سیریز 24 نومبر سے شروع ہوگی۔ دورہ آسٹریلیا سے قبل گیری کرسٹن ہیڈ کوچ کے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے۔ پنجاب میں اسموگ اور دھند برقرار ہے۔ بہاولپور 599 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ رحیم یار خان 515 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور اور ملتان میں اسموگ کی صورتحال بہتر ہونے لگی۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 283 جبکہ لاہور کا 282 ریکارڈ کیا گیا۔ آلودگی میں کمی آنے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کہتے ہیں تقریباً 1.5 ماہ کے بعد سورج دیکھا ہے۔ الماس خان کی رپورٹ۔ فضائی آلودگی میں نمایاں کمی کے باعث شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گزشتہ روز تک لاہور 800 سے زائد ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا۔ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ لاہوریوں نے بھی آج 1.5 ماہ بعد سورج کی شکل دیکھی ہے، تو موسم کافی بہتر ہو گیا ہے۔ سانس اچھی طرح لے سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں اور بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے بعد شہریوں کا کہنا ہے کہ اسموگ کے تدارک کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات اور نماز استسقاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاہوریوں کی سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم و کرم کیا ہمارے لاہوریوں پہ، اور آج موسم بہت اچھا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح موسم اچھا ہوا اس طرح بیماریاں بھی ختم کی جائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 100% تک ہونے کے باعث فضائی آلودگی میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے اظہر۔ جی، یہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت اور متعلقہ وفاقی وزراء بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ اس اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے گا اور انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ بالخصوص صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتائج سے بھی آغاز کیا جائے گا، جبکہ اس اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے عام فیصلوں کی منظوری بھی دی جائے گی۔ شکریہ آپ کا اظہر۔ پاک فوج کے 7 جوان وطن عزیز پر قربان۔ کلات کے علاقے شاہ مردان میں دہشت گردوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ ISPR نے بتایا وطن کے ساتھ بہادر سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن کو سپوتاز کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جوانوں کی یہ قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کلات میں چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صدر نے دہشت گرد حملے میں بہادر جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ کہا دہشت گرد عناصر ملک و قوم کے دشمن اور ترقی کا سفر سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام دہشت گرد عناصر کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل اور 4 کو زخمی کرنے پر فورسز کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف قوم بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں نے قربانی دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ امن کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے پاک فوج کے جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ قوم شہداء اور ان کے باحوصلہ خاندانوں کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ بانی PTI کے فوجی عدالت میں ٹرائل سے متعلق پاکستانی حکام سے اشارے نہیں ملے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں بانی PTI سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے پاکستان کی صورتحال پر برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب دیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ۔
54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। खत में कहा गया, पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। रियासती हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की मजीद पामाली की। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंदे सलासल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद और दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने को हिकमत अमली अपनाने का कहा जाए। पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर को इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की हिदायत की जाए। तवक्को है पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। दफ्तर खारजा ने अंग्रेजी रोजनामे में वजारत खारजा से मुतालिक शाये होने वाली स्टोरी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टोरी के मामले पर अखबारात के एडिटर्स से इदारती मयार और सहाफ़ती इक़दार के मामले पर बात की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, मीडिया किसी भी स्टोरी की इशाअत से पहले दफ्तर खारजा से तस्दीक ज़रूर किया करे। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई के लिए हिदायत दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई की सीसीटीवी और वीडियोस जारी कर दी। कहा, वीडियो में जलाओ घेराव करने वाले देखे जा सकते हैं। पीटीआई क़यादत 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ पर कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, हम कौन सा एनआरओ मांग रहे हैं, हमारा लीडर और सीनियर क़यादत तो जेलों में है। पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से जारी वीडियोस मुस्तरद कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं, एक टुकड़ा एक जगह से उठाया, दूसरा टुकड़ा कहीं और से साथ लगाया गया। फुटेज को एडिट भी दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा ने कहा, मोबाइल फोन से बनाए गए फुटेज को हुकूमत सीसीटीवी फुटेज का नाम दे रही है। तरीके इंसाफ इस फुटेज को रद्द करती है। इसको सीसीटीवी फुटेज कहते हैं। 9-10 घंटे पे मुहित एक वाकया जिसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसके आप इस तरीके से टुकड़ों में किसी चीज को किसी से मिला दिया, ये कोई बॉडी फिल्म का आपने वो ट्रेलर निकाला है, इसको एडिटेड भी सही तरीके से नहीं किया, किसी नलायक आदमी ने किया। बड़ी कुर्बानी है शाह महमूद साहब की, और की जो गुफ्तगू है उसमें वजन है, उनकी बात में वजन है, और बिल्कुल क़यादत को उनसे वक्तन फवक्तन गुफ्तगू करनी चाहिए। और जैन कुरैशी साहब को पार्टी से निकाला नहीं गया था, एक वजाहत तलब की गई थी, इसका जवाब उन्होंने दे दिया। कल जो यहाँ पे पेशावर में इजलास हुआ जिसकी सदारत बैरिस्टर गौर ने की, उसमें जैन कुरैशी साहब मौजूद थे। वक्त मिले तो 1.5 साल से कैद क़यादत से भी मिलने। शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई लीडरशिप से शिकवा। कहा, कायदीन बानी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों से राब्ते करें। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बानी के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। डीआई खान के टांक रोड पर गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग, धमाका और फायरिंग। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मजीद नफरी तलब कर ली गई। सिब्बी में PB8 की सूबाई नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। जिले भर में सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल और इंटरनेट बंद है। मजीद बताएंगे नाशाद बलोच। जी, सिब्बी में PB8 के सूबाई असम्बली के निश्चित पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर 1,16,000 वोटर अपना राय हकदारी इस्तेमाल करेंगे और 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ DIG सिब्बी रेंज अब्दुल हमीद खोसो साहब मौजूद है। हमने सिब्बी को 8 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें 4 मेन सेक्टर हैं और 8 सब सेक्टर्स हैं। और हमने 1000 पुलिस की जो है नफरी यहाँ डिप्लॉय की है। सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे हमने किए इंशाल्लाह, और अच्छे माहौल में ये इलेक्शन होगा। अब्दुल हमीद खोसो का कहना है कि सिक्योरिटी के ज़िला भर में फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं और पोलिंग का अमल यहाँ पर पुरअमन तरीके से जारी है। जी, फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले गिरफ्तार 4 मुबैना डाकू अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गए। मुलज़िमान ने 1.5 माह कबल कड़ीवाला में शादीशुदा खातून से दौरान डकैती इज्तिमाई ज़्यादती की थी। पुलिस के मुताबिक थाना निशादाबाद पुलिस गिरफ्तार 4 मुलज़िमान जाहिद, नवीद, कासिम और इस्लाम को असलहा बरामद करवाने ले जा रही थी। अजकीरा के करीब सीम पुल पर मुबैना तौर पर मुलज़िमान को छुड़वाने के लिए 4 मोटरसाइकिलों पर सवारान के साथ
साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 मुलजिम हलाक हो गए। हमलावर एक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। डस्का में ज़ारा कत्ल केस में पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। पुलिस ने कातिल सास की दूसरी बेटी, उसके बेटे समेत मजीद 4 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिमा सुगरा की एक बेटी यास्मीन और उसका बेटा अब्दुल्ला पहले ही गिरफ्तार है। अब दूसरी बेटी सबा और उसके बेटे कासिम को भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दीगर मुलजिमान में कोटली मरला का शबीर और वजीराबाद का आजान अली हैं। पहले से गिरफ्तार मुलजिमान सुगरा बीबी, यास्मीन और उसके बेटे अब्दुल्ला का आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा। मुलजिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में जिना अस्पताल से कैदी के फरार का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा हेड कांस्टेबल खुरम शहजाद के खिलाफ गफलत बरतने पर दर्ज हुआ, गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 कैदियों को इलाज के लिए जिना अस्पताल ले जाया गया था। हेड कांस्टेबल खुरम शहजाद मफरूर मुजरिम आगा सलमान को टेस्ट कराने लेकर गया, जहां से वो फरार हो गया। दीगर 2 एहलकार दूसरे कैदी की रखवाली पर थे। तहकीकात जारी हैं। गजा में पर सेहोनी हमलों में फिर तेजी आ गई है। 24 घंटे में 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने स्कूल को निशाना बनाया। शिमाली गजा के महासरे ने ग़िज़ाई बहरान पैदा कर दिया। लोग अशिया खुरनोज से महरूम हैं। रवां साल इसराइल ने गजा पर 25,000 टन बारूद बरसाया, जो 2 एटम बम के बराबर है। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। नाबलुस में काबिज इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर जला दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के घर पर एक बार फिर हमला किया गया। हीफा के जुनूब में वाक़ बिन्यामिन नेतन्याहू की रिहाइश का कैसरिया पर 2 फ्लैश बम फेंके गए, जो घर के सहन में गिरे। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका खानदान घर पर मौजूद नहीं था। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका बम फेंकने के वाक़े में कौन मुलव्वस है। नेतन्याहू वाक़े को संगीन करार दिया। हमले के इल्ज़ाम में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इसराइली सदर ने सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेन को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पेरू में एशिया पैसिफिक मौशी ताउन तंजीम का सबरा इजलास हुआ, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीनी सदर ने कहा अमरीका से मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। 2 घंटे की मुलाकात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का अज़म किया। सदर जो बाइडन से साइबर क्राइम से लेकर तिजारत, ताइवान और रूस तक के अहम तनाज़ात पर भी बात की। चीनी सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ़ भी किया और कहा अमरीका के साथ काम करने की ख्वाहिश में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरान ने इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात की तरदीद की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमरीकी मीडिया ने इलॉन मस्क की ईरानी मंदूब से मुलाकात की झूठी खबर फैलाई। क़यादत ने ऐसी किसी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अभी ऐसी मुलाकातों का वक्त नहीं। हम देख रहे हैं नई अमरीकी इंतज़ामिया की पॉलिसियाँ क्या होंगी, उसकी बुनियाद पर अपनी पॉलिसियों को एडजस्ट करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब की इलॉन मस्क से मुलाकात का दावा किया था। ट्रंप की टीम की जानिब से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़िद रेफरेंडम में वोटिंग मुकम्मल हो गई है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही लोगों की तवील कतारें लग गई थीं, जिसकी वजह से रेफरेंडम के मुकर्ररा वक्त में 1 घंटा इजाफा किया गया। रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिखों की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। आज़ाद पंजाब रेफरेंडम कमीशन का कहना है कि रेफरेंडम में 37,000 से ज़्यादा अफराद ने वोट डाले। वोटिंग से पहले दुआया तकरीब हुई। खालिस्तान के क़याम के लिए दुआएं मांगी गईं। कुर्बानी देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रैब का पंजाब में जाली दवाइयों के खिलाफ एक्शन। 7 जाली अद्वियात की निशानदेही की। जाली अद्वियात का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। ड्रैब के मुताबिक पंजाब ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने जाली अद्वियात की निशानदेही की, जिसके बाद 7 अद्वियात के बैचेस को जारी करार दिया गया है। ये अद्वियात कराची, लाहौर, पेशावर और हत्तार की फार्मा कंपनीज के तैयार करदा थी। मारूफ ब्रांड की अमराज निस्वा के 4 अद्वियात के 4 बैचेस जाली करार दिए गए हैं। इसी तरह पंजाब में दस्तयाब मिर्गी और सकून आवर गोलियों के 2 बैच भी जाली हैं, जबकि क्लोजन नामी आई ड्रॉप्स का एक बैच जाली फरोख्त हो रहा है। इसके साथ मारूफ सकून आवर टैबलेट 81 का भी एक बैच जाली करार दिया गया है, जबकि अमराज निस्वा की मारूफ डोफास्टोन टैबलेट का एक बैच जाली है। इसी तरह एफास्टोन, एस्काइन और डाइडोविन के 3 बैचेस को जाली करार दिया गया है। पंजाब में मिर्गी की मारूफ टैबलेट फिनोवार का एक जाली बैच जो है इस वक्त वो फरोख्त हो रहा है।
نے حوالے سے اپنی جو فیلڈ فورس ہے ریگولیٹری اس کو ہدایت کی ہے کہ مارکیٹ سرویلنس بڑھائی جائے اور جعلی ادویات کی جو سپلائی چین ہے اس کی جامع تحقیقات کر کے مارکیٹ سروے کر کے سپلائرز کی نشاندہی کی جائے اور مارکیٹ میں دستیاب جعلی ادویات کے تمام بیچز جمع کیے جائیں، کیونکہ جعلی ادویات کا جو خاتمہ ہے وہ یقینی بنانا ڈریپ کی اولین فرض بھی ہے۔ اسی حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز، میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کو ادویات کا سٹاک چیک کر کے ان جعلی ادویات سے متعلق ڈریپ کو فوری اطلاع دینے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سروں کی لیلا گلوکارہ رونا لیلا نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھ لیں۔ رونا لیلا نے اردو، ہندی، سندھی، پنجابی، بنگالی اور پشتو سمیت 17 زبانوں میں سپر ہٹ گیت گائے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔